Good morning, students. Welcome back to your online sessions of Science Class 8. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation, because if you see that there is so much novel COVID coronavirus that can be implemented very fastly surrounding of your places. So I request you to unnecessarily don't go outside your homes. Just avoid to go outside the crowded places. If it should be necessary, then use the protective face of mask layer. Always be with you having a sanitizers. Always be wash your hands within 20 seconds. Make a distance between the more than two people. Always wear the mask when you are talking to someone else. So these are the precautions that you have to take to reduce the formation of COVID-19. So I request you to stay home and stay safe. Now let me discussing about the chapter which we have to study today. That is chapter number 5 is a natural parts of resources, that is coal and petroleum. Okay. So generally this coal and petroleum is what? It is a part of the natural resources. We cannot be obtained. So we have been used various type of materials which is available in our basic needs. Whatever the requirement which we have a different type of requirement. As a part of the food, as a part of the clothes, as a part of the service, as a part of the lands, as a part of the industry, as a part of the economics, as a part of the social, different types of the basic needs we have. So, as per the basic needs, various type of materials that should be used as a part of our basic needs. हम अलग-अलग तरीके के materials का use करते हैं, in which some of the materials that are found into the nature and some of has been implemented by the artificial method, that should be the human process. Okay, so इसमें से बहुत ऐसे materials जो होते हैं that is directly available from the nature, and some of the materials which should be developed by the methods of the artificial process of the humans. So generally it can be classified as a part of the natural resources and the man-made resources. In the previous chapter, as a part of the synthetic fibers, that we have to also discuss in what is called natural resources and what is called man-made resources. The resources which can directly use as a part of the environment as per our basic needs, which doesn't require any kind of the human efforts, that is called natural resources. Okay, तो जो डायरेक्टली हमें एनवायरनमेंट में से मिलता है, इसमें किसी भी तरह के ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं. बट द आर्टिफिशियल मैन-मेड रिसोर्सेज क्या है, which generally includes the human efforts. Artificial resources generally include the human efficiency or human efforts in which they have to be developed a certain kind of objects or the substances which should be used by the entire parents of the organism as a part of human. So this is called as a man-made. So if you see that different type of the animal part of the substances which we have to be used in our daily life, either it should be a man-made or either it should be natural. Okay. So if you consider that the mainly substances of natural resources, like we are using the sunlight, we are using the air, we are using the water, we are using the forest, the materials which is available from the forest as part of the elements which we have to be obtained from the earth as part of the free form, as atmosphere or biosphere, as a part of the hydrosphere. So these are the substances which can be directly obtained from the environment. These are the resources that are called as natural resources. This को क्या कहेंगे, natural resources. So नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी दो तरीके के रिसोर्सेज आते हैं. एक होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ईच वन इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल, अदर इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल. अभी इस तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में दो पार्ट्स हो गए उसके सब. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमें अर्थ के ऊपर जो हमें मिलता है, जो एनवायरनमेंट में से हम उसका यूज करते हैं, तो उसमें इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल में क्या डिफरेंस है पहले तो समझिए. कुछ ऐसे प्रोसेस जैसे आप एयर का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, सॉइल का यूज कर रहे हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो अगर आप इसका यूज कर रहे हैं, इन द फ्यूचर टाइम्स कैन दिस टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी एग्जॉस्टेड इफ यूजिंग बाय द ह्यूमंस. दैट टॉपिक यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टैंडर्ड 7. So according to based on this existable formations of the process of the humans by using of the process, they should be classified into the inexhaustible and exhaustible. So let me discussing first कि inexhaustible natural resources क्या होता है. तो generally the resources which is available or when it present into the unlimited quantity in a nature. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर के अंदर, एंड इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. अगर ह्यूमन उसका यूज करते हैं तो दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड.
So this type of natural resources is called inexhaustible, जिसमें सनलाइट है, एयर है, ठीक है। ऐसे जो substances है which cannot be existed by the human activities, these are the resources which is available in the unlimited quantity in the form of earth, unlimited form में है, कभी भी यूज करने में खत्म नहीं होंगे, तो इसको inexhaustible natural resources कहते हैं, जिसके अंदर एयर आता है और आप सनलाइट का एग्जांपल भी दे सकते हैं, राइट। चलिए दूसरा आता है exhaustible। So exhaustible natural resources जो होते हैं, this type of resources is available into the limited quantity onto the form of earth, a limited quantity में this should be exhausted by the using of human activities। अगर human activities अगर इसका continuously use करते हैं तो near of future of time it may be exhausted, उसकी जो quantity है धीरे धीरे कम हो सकती है, तो आप इसको क्या कहेंगे, exhaustible natural resources कहेंगे, राइट। तो exhaustible मींस से कॉल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है, सारे exhaustible, आप इसका जितना यूज करोगे उतना जाता है, इसका जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। ये दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज, वन इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल के अंदर भी दो सब टाइप्स है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन करें तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के भी दो सब टाइप्स हैं। एक आपका आता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। एग्जॉस्टिबल अभी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कि ऐसे रिसोर्सेज रिन्यूएबल में कि जिसका यूज करने पे नियर ऑफ फ्यूचर ऑफ टाइम फिर से रीजनरेट हो जाए, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लैंड्स है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस है जिसका एक बार यूज करने के बाद नियर ऑफ फ्यूचर टाइम में फिर से रीजनरेट हो जाए, उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, इफ यू आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रीजनरेटेड इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल, तो ये नॉन रिन्यूएबल होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज एक बार यूज करने पे फिर से वो थोड़ा टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम टू बी रीजनरेट, सो दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, एक बार यूज करने के बाद वो फिर से जल्दी जनरेट नहीं होता है। तो ये सारे आपके उसमें से आते हैं। तो ये सारे जो सब्सटेंसेज आप यूज कर रहे हैं कि जो टोटली अवेलेबिलिटी है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, इट शुड बी अ वेरी फॉर्मेशन ऑफ ईच ग्रुप। ये जितना ग्रुप ईच ग्रुप हैव बीन यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंजम्पशंस और देयर may be a specific formation of uses that should be generated in a very less amount of time. It should be taking a very long time to be regenerate this type of substances. So in this chapter, slightly in this chapter, we have to learn about this type of resources which is generally part of the fossil fuels. Fossil fuels के अंदर आप देखिए तो सबसे पहले तो जैसे कॉल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, सारे एग्जॉस्टिबल है, जितना ज़्यादा यूज करोगे वो सारे खत्म होते जाएंगे। ये सारे रिसोर्सेज होते हैं, दिस ऑल दिस रिसोर्सेज में भी कॉल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दिस ऑल आर फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज दे आर नोन एज अ फॉसिल्स। सो दिस आर द फ्यूल्स एज नोन एज अ फॉसिल फ्यूल्स। इसको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, जिसमें तीन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है। वन इज कॉल्ड कॉल, सेकंड इज पेट्रोलियम, थर्ड इज नेचुरल गैस। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल्स के, कि जो अर्थ के सरफेसेस के अंदर डीप लेयर ऑफ फॉर्मेशन में आते हैं, डेड मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, दैट शुड बी क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक सेगमेंट दैट इज कॉल्ड फॉसिल। तो उसमें से सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं एज अ पार्ट ऑफ फ्यूल्स हम यूज करते हैं, इसलिए उसको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, राइट। ये हो गया डिस्क्रिप्शन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल क्या है, उसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं वो तीन सेगमेंट जो है वह कॉल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में। लेट मी स्टार्ट अबाउट द कॉल। पहला टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो है कॉल, ठीक है। मैंने लिखा दिया आपका कॉल के बारे में। तो कॉल जो है इस तरह के सब्सटेंसेस की, you have been seen the object of call. Call mostly you have been seen that it can be found. So call is generally having a very, that is generally heard about is call. It is like a very hard substance, stone, and it is mostly seen into the black color. Call is a very hard substance, generally having in a black color. Like a stone जो होता है ना इतना hard होता है, इस तरह के call का formation आते हैं, it is a hard as stone and it is generally having in a black color. Generally ये call का formation होता है। Call जो है is one of the fuels used to cook a foods. Call का use जो देखेंगे तो mostly क्या use होता है? Call is generally used as a part of fuels to use to preparation of foods. Food बनाने के लिए हम इसका use करते हैं। Earlier, the coal it should be used as a part of the railway engines to produce the steam. Railway engines के अंदर use होता था, जहाँ पर coal का use करते थे, वो steam release करता था और steam release करके हम engine को run करते थे।
Also, this type of the resources of coal is used in the thermal industries, power plants जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ पे उसका यूज होता है. It is also useful as a part of the various industries. बहुत तरह की इंडस्ट्रीज भी हैं वो कॉल का यूज एज अ पार्ट ऑफ द फ्यूल करते हैं. तो दैट इज अबाउट द कॉल. बट कॉल कैसे फॉर्म होता है? हाउ द कॉल दैट कैन बी फॉर्म. कॉल में भी अलग अलग तरीके के टाइप्स आते हैं कॉल के. इसमें एक उसका बिटुमिनस कॉल आता है, एंथ्रेसाइट कॉल आता है, लिग्मेंट्स फॉर्मेशंस आते हैं, बिटुमिनस कॉल, एंथ्रेसाइट, इस सारे जो फॉर्मेशंस आते हैं कॉल के टाइप्स आते हैं. ठीक है. सो पहले का हमें समझना है कि कॉल का फॉर्मेशन कैसा है, हाउ द कॉल दैट कैन बी फॉर्म. सो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स अगो के पहले अगर हम डिस्कशन करें, so earth is generally covered with a dense forest. Mostly about 300 million years ago, earth is mostly covered with the dense forest and it is generally a wetlanded areas. ऐसे जहाँ पे wetlands होते थे, है ना, भीगे हुए रहते थे most of it. So these type of areas due to the natural process, जहाँ पे disasters आते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कि floodings आते हैं, earthquake आते हैं. तो ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल फ्लूड्स के हिसाब से हम देखें तो फॉरेस्ट दैट विल बी ब्यूरिड अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है. एंड विद द स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल देयर इज अ लेयर ऑफ सैंड एंड द क्ले दैट कैन बी ओवर इनटू द डीपर एंड डीपर. So when the temperature that is available onto the earth's surface that should be compressed, they should be compressed, this type of the substances, and we having the temperature deeper and deeper by the high temperature they have been with the high temperature they converted as a form of coal. So this type of the substances will start to be converted in a specific form that is called as a coal. ये सारे substances with the high temperature of coal जो magma का formation होता है उसके थ्रू में धीरे-धीरे coal में converted हो जाते हैं. So as the coal that contain mostly the substances carbon. coal के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे mainly जो substance which available into the coal that is called as a carbon. So it is a very slow conversion rate. So as the slow process of conversion of this type of the substance is a part of the dead vegetation into the coal, that process is called carbonization. Okay. So this type of the very slow process of conversion of the dead formation into the formation of coal, this is called as a carbonization process. So generally this is called carbonization. So coal is generally one is the part of the fossil fuels. Coal it is a one part of the fossil fuels and which is generally used for the different process. So when generally we making the distillation of coal का जब आप distillation करते हैं तो उसमें से 3 substances हमें मिलते हैं. coal जो है उसका अगर आप distillation करते हैं उसमें से आप अलग-अलग substances को अलग करते हैं with providing a heat air and the providing of airs and the different formations of the coal burns and produce the mainly carbon dioxide. If you burn the coal in the presence of air, it mostly produces the carbon dioxide because any substances have the property when they are implemented with the oxygen substance that always create the oxide. So carbon is that kind of the substances which are part of coal which converted with the part of the oxygen which generally create the carbon dioxide. So coal is generally produced into the industries to get some useful products. Industries के अंदर इसका use करते हैं for implementing some useful products. By the distillation process we get the coke, coal gas and the coal tar. These are the 3 main substances which we have to derive as a part of the industrial process as a coal distillation, जिसको आप क्या कहते हो, coal as a formation of coal gas and coal tar. Now first we discussing about the coal. जब आप coal का distillation करते हैं तो उसमें सबसे पहला substance मिलता है वो होता है coal, COKE. coal क्या काम करता है? If you have seen the coal, it is a very tough and the very black substances and porous. It is a very tough, porous and black substances. It is generally in a pure form of carbon. Coal is generally in a pure form of carbon. कार्बन का जो प्योर फॉर्म होता है जनरली हार्ड एंड पोरस सब्सटेंसेस ब्लैक कलर जिसको आप कॉक कहते हो. मोस्टली ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील का मैन्युफैक्चरिंग जब होता है उसमें कॉक का यूज किया जाता है. उसके अलावा एक्सट्रैक्शन जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जब आप हायर स्टडीज में आएंगे तो पढ़ना होगा. जब ब्लास्ट फर्नेस यूज होता है, ब्लास्ट फर्नेस जो मेट्रोलॉजी प्रोसेस है जिसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, उसमें हम कॉक का यूज करते हैं. उसके अलावा कॉक का दूसरा यूज हम एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट में करते हैं. जैसे एल्यूमिनियम जो है वो 2 सब्सटेंसेस फॉर्मेशन चल रहा है उसमें सॉरी एल्यूमिनियम कह रहा हूँ, स्टील के प्रोडक्ट में भी हम कॉक का यूज करते हैं जिसमें आयन अगर कॉक के साथ रिएक्ट करता है तो एलॉयज बनाता है जिसको हम स्टील कहते हैं.
जो स्टील जो है काफ़ी हार्ड लिक्विड सब्सटेंस होता है, इसमें कभी कोरोजन नहीं लगता है, वो आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। ये हो गया कॉक के बारे में। दूसरा आता है कॉल्टर। कॉल्टर जो है वो भी ब्लैक कलर का लिक्विड सब्सटेंस है। कॉल्टर इज अ ब्लैक कलर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस व्हिच हैविंग एन अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल थोड़ी सी अनप्लेजेंट होती है। इट इज अ मिक्सचर अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसमें ऐसे ऐसे 200 सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इसके मिक्सचर देखने को मिलते हैं। Product which obtained as a part of coal tar is mostly used as a part of the materials for the manufacturing. It is also used to preparation of roads. रोड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है. Also the different type of the substances which can be obtained as a part of fuel into the coal tar. तीसरा जो है वो कॉल गैस है. कॉल गैस जो होता है जनरली जिसमें बिट्यूमिनस कॉल है, लिग्निन कॉल है, एंथ्रासाइट कॉल्स है, ऐसे अलग अलग तरह के कॉल के फॉर्मेशंस आते हैं. सो कॉल के अंदर में जो बिट्यूमिनस कॉल्स जो होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है, वो कॉल tar जो होता है वो मेल्टिंग ऑफ रोड्स के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है. और कॉल गैस जो होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कॉल, ये हमें जो कॉक का फॉर्मेशन होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने पे कॉल गैस मिलता है. और कॉल गैस जो होता है मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है एज अ पार्ट ऑफ द कॉल प्रोसेसिंग सिचुएशन. सो सबसे पहले देखिए 1810 के अंदर जो लंदन में है वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स में पार्ट ऑफ एनर्जी कॉल गैस का यूज किया. फिर अमेरिका के अंदर 1820 के अंदर इसका यूज हुआ. रिसेंटली अभी इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर होता है रेदर देन लाइट के अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर इसका यूज करते हैं, वो है कॉल गैस. तो कॉक के टाइप्स, कॉक कैसे फॉर्म हुआ, कॉक के टाइप्स में क्या, कॉक क्या है, कॉल गैस क्या है, कॉल tar क्या है, राइट. कॉल के फॉर्मेशन आ गए. चलिए कॉल के बाद दूसरा टॉपिक जो है हमारा पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में यू हैव टू नो द पेट्रोल दैट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द फ्यूल्स इनटू द ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स है, कार्स है, ट्रक्स है, इन सब के अंदर यूज होता है. सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज मोस्टली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द फ्यूल्स इनटू द मोस्टली ऑटोमोबाइल्स इंजन, जिसमें कार, स्कूटर्स, बसेस ये सारे उसके अंदर यूज होते हैं. हैविंग मोटर व्हीकल जैसे ट्रक है, बसेस है, डंपर्स है, ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डीजल पे रन होते हैं. यानी इसमें दो सब्सटेंसेस आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, वो डीजल पे रन होते हैं, बट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है कि दैट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं. कि जो डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, केरोसिन है, नेफ्था है, लुब्रिकेंट ऑयल है, tar है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जब हम यूज करते हैं उसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं. तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे फॉर्म होता है, हाउ दिस कैन बी फॉर्म, इसके बारे में पहले हमें समझना होगा. जैसे कॉल का पूरा हिस्ट्री है, कॉल कैसे फॉर्म होता है, वैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं. सो पेट्रोलियम वाज दैट शुड बी फॉर्म्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज लिविंग इनटू द सी. पेट्रोलियम जो होता है वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु आर इम्प्लीमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ द एक्वाटिक्स. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ये ऑर्गेनिजम्स बनते हैं दैट शुड बी डाइड, their bodies that should be settle into the bottom of the sea level. उनका जो बॉडी होता है धीरे धीरे जो सी लेवल का बॉटम है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, जिसके ऊपर सैंड और क्ले का एक लेयर क्रिएटेड होता है. ओवर एंड ओवर ईयर्स ऑफ ईयर्स वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे एयर के एब्सेंस में क्या होता है कि टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. अनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको ट्रांसफॉर्म करता है डेड ऑर्गेनिज्म को, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर. तो इस हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस जो है फॉर्म होते हैं. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जब आप उसका रिफाइनिंग करते हैं, जो पेट्रोलियम ऑयल जो होता है, ये जो वाटर के सरफेस से आपको मिलता है, तो ऑयल और गैस ये दोनों टुगेदर जो मिक्स होते हैं वो उसके बाद हम उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं. सबसे पहले अगर आप देखें तो वर्ल्ड के अंदर पहला जो ड्रिल था वो था आपका कहाँ पे, वो था आपका पेनिसुलाविया के अंदर, यूएसए के अंदर पेनिसुलाविया है. तो इस पेनिसुलाविया के अंदर सबसे पहले पेट्रोलियम को डील किया गया था 1859 के अंदर. उसके बाद अलग अलग 8 सालों के बाद 1857 के अंदर ऑयल जो है वो मैकम असम के अंदर मकाम है उस जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ था. उसके अलावा असम के अलावा गुजरात के अंदर मुंबई के अलावा भी दूसरे ऐसे हाई गोदावरी के जो रिवर्स है वहाँ पे हमें इस पेट्रोलियम रिवर्स ऑफ टाइम्स अवेलेबिलिटी मिलती है. तो रिफाइनिंग हम क्यों करते हैं, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें मिलता है उसका रिफाइनिंग क्यों करना पड़ता है, व्हाई इट शुड बी रिफाइंड. अभी पेट्रोलियम जो है इट इज अ डार्क फॉर्म ऑफ लिक्विड, जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं. जैसे गोल्ड महंगा है वैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं. सो पेट्रोलियम इज अ डार्क पार्ट ऑफ द ऑयली लिक्विड सब्सटेंसेस व्हिच इज आल्सो कंसीडर्ड एज द ब्लैक गोल्ड एंड इट हैज एन अनप्लीजेंट स्मेल. इसकी जो स्मेल होती है ना थोड़ी सी अनप्लीजेंट होती है, कुछ अलग जैसे इसकी स्मेल मूव होती है. एंड दिस टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इट इज
a mixture of various type of constitution of the petroleum substances. ये जो प्रोडक्ट जो मिलता है पेट्रोलियम का, उसके अंदर बहुत तरह के ऐसे पेट्रोलियम सब्सटेंसेस जो है वो एज अ पार्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल, गैस, नेफ्था, कोल्टर, ऐसे फॉर्मेशंस के अंदर पैराफिन, वैक्स, ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस में अवेलेबल होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच इज अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इसमें से हमें उसको रिमूव करना पड़ता है. और हर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो रिफाइनिंग की होती है पेट्रोलियम की, वहाँ से वो सेपरेटेड होता है. So various type of constitutions that can be removed from the by refining of petroleum products. तो सबसे पहले रिफाइनिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसको एक बड़ा सा फ्रिक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर ले जाना पड़ता है. पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर हम उसको हीट करते हैं, अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग स्लॉट्स के अंदर अलग अलग टेम्परेचर होते हैं. उस टेम्परेचर के हिसाब से ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द पेट्रोलियम रिफाइनरी. सो सबसे पहला जो सब्सटेंसेस उसमें से निकलता है, उसमें अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस आते हैं. सबसे पहले नेचुरल गैस होता है. 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पे हमें नेचुरल गैस मिलता है. जो पेट्रोलियम गैस जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं. इसमें मीथेन मेन सब्सटेंसेस होता है. नेचुरल गैस का मेन सब्सटेंस क्या होता है, मीथेन होता है, जो एज अ पार्ट ऑफ फ्यूल और होम के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ पार्ट ऑफ फ्यूल उसका यूज होता है. फिर उसके बाद पेट्रोल निकलता है. पेट्रोल 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में मूव आउट करता है. तो पेट्रोल जो होता है वो मोटर के अंदर एंड एविएशन फ्यूल के अंदर या ड्राई क्लीनिंग जैसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसका यूज होता है. फिर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस से मूव करते हैं तो डीजल हमें मिलता है. उसके अलावा कैरोसिन है, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिक्स है, उसके अलावा बिटुमिन्स है. ऐसे अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस मिलते हैं जिसका यूज अलग अलग होता है. तो जो आपके बुक्स के अंदर एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा कि क्या सब्सटेंसेस मिलते हैं, उसका क्या यूज है. सो एज अ फ्यूल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल के अंदर यूज होता है जो लेस पॉल्यूटिंग है. अगर आप देखें तो फॉर्मेशन से होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं तो नेचुरल गैस. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मेन गैसेस है. सबसे पहला नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है, नेफ्था है, कार है, ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं. तो उसमें सबसे पहला सब्सटेंसेस मिलता है नेचुरल गैस. और नेचुरल गैस भी एक अभी सबसे इंपॉर्टेंट एफिशिएंट मीडियम से हमारा पार्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के लिए. सो नेचुरल गैस क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है. सबसे पहले तो नेचुरल गैस जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द पार्ट ऑफ फ्यूल. Natural gas is one of the important aspect as a part of the fuel because it is easy to transportation through the pipes. Natural gas जो है it is one of the medium. It is a very important aspect as a part of the fuel which can be easily transported from the one part to another part through the pipelines. Pipelines के थ्रू हम उसको भेज सकते हैं. So this natural gas is one of the formation where the heavily under pressure that is create of CNG जिसको compressed natural gas कहते हैं. तो CNG is mostly used as a power generation. Power generation के अंदर यूज होता है. Now it should be in a recent days it should be using as a part of fuel in the transportation of vehicles because it create a very less amount of pollution. वो CNG का मेन काम होता है. The great advantage of CNG is that कि सबसे important अगर आप देखें CNG का कि ये directly it can be directly burning into the homes and factories where it can be supplied through the pipelines. CNG होता है डायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ द होम्स के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर पार्ट ऑफ फ्यूल्स हम यूज करते हैं जो डायरेक्टली हम पाइपलाइन के थ्रू उसको सेंड आउट करते हैं. सच टाइप ऑफ चैनल्स व्हिच कैन बी सीन इन सेवरल सिटीज लाइक वडोदरा, अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, डिफरेंट सिटीज में ये अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलती है. एंड दैट कैन बी इजीली कैरी फ्रॉम एज अ पार्ट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल्स टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. So during this gas is also a part of the starting of material of manufacturing of the number of chemical and fertilizers because it contain a chief component of methane. इसमें से जो सब्सटेंसेस होता है मीथेन का उसका यूज करके आप फर्टिलाइजर्स या इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस में यूज कर सकते हैं. मोस्टली द नेचुरल गैस has been implemented in our country like found into the Tripura, Rajasthan, Maharashtra, on the areas of the Krishna and Godavari river. ऐसे रिवरों पे वो नेचुरल गैसेस जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं. तो अभी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं उसमें ये एक्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड फॉर्म में. दीज आर अवेलेबल इन द वेरी लिमिटेड क्वांटिटी. अगर आप प्रॉपर्ली और जुडिशली यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसकी कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए. सो यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग व्हेन आई टोल्ड यू कि the natural resources are available. This type of products, petroleum products specifically called petrol and natural gas, they are in limited quantity as a part of exhaustible natural resources.
like fossil fuels, forest and minerals which is available into the formation, so एग्जिस्टेबल है, जितना आप यूज करेंगे उतना कम होता जाएगा। फॉरेस्ट भी आप जितना यूज करते जाएंगे कट होते जाएंगे, वो भी कम होते जाएंगे। मिनरल्स अर्थ के अंदर से आप रिकवर करते जाएंगे, वो भी कम होते जाएंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। So you also know that the coal and petroleum products as also part of the existable resources which should be made formed by the made organic materials, जिसमें seed plants of animals है या फिर जो living organisms plants है, तो ये it will be take a very long time to be converted into part of fossils. This type of substances will take a very long time to convert it in the part of the fossil. Fossil के अंदर convert होने में काफी time लगता है। तो as we generally use the very large amount of quantity of these petroleum products, and it will take a very long time to prepare that petroleum product. In the recent of 50 years, it may be, it should be a very less amount of proportion. तो जितना ज़्यादा यूज हो रहा है उससे काफ़ी कम रेट के अंदर वो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी यूज दिस टाइप ऑफ फ्यूल्स वेरी जुडिशली। तो इसके लिए भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिए कि हमारे कंट्री के अंदर उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन आता है जिसको PCRA कहते हैं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च इन एसोसिएशन जो PCRA है, जो इस तरह के fossil fuels पे वर्क करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, they have to advise to the people for country to save the diesel, save the petrol, save the electricity, save the water, because these are the substances are the existable natural resources in the future of time. So what we have to do to conserve this type of resources? First of all, when this is not necessary of lights, switch off the lights and fans. If you are sitting into the hall and the bedroom having the light on or fan is on, they have to be switched off. So that should be also save the electricity. Drive at the constant rate of the speed as far as possible. जितना हो सके maximum speed पे ही move करें। 50 है तो 50, 60 तो 60 पे constant speed पे move करें। Switch off the engine, जहाँ पर traffic lights हो वहाँ पे switch off कर लीजिए, क्योंकि it will take minimum 1 minute to be clear this traffic lights. तो ऐसे फॉर्मेशन से उसके साथ साथ टायर का प्रेशर देखिए, टायर का प्रेशर अगर कम होगा तो भी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंप्लीमेंट करेगा रन करने के लिए। उसके साथ साथ व्हीकल का जो रेगुलर मेंटेनेंस है इंश्योर करेंगे उसका जो इंजन प्रॉब्लम्स है रेगुलर मेंटेनेंस वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो these are the general tips we have to be taken care to conserve our petroleum products. So clear? So students, that is the last topic of our chapter, that is called as the petroleum products and the natural resources. So I hope the today's session that should be easily understood by you. So I request you to keep updating your knowledge by using the digital medium of studies. Also make on language of your answers by using this type of topics of questions. And I hope ये session आपको समझ में आया होगा. Will you meet on the next time? Then discussing about the next chapter of your topics of science. So students, I also request you to stay safe and stay home. Take care and bye.